Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we started with the topics of semiconductors and we were able to complete these topics up to extrinsic and intrinsic semiconductors. Where we studied the difference between the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductors, and we also studied the different types of extrinsic semiconductors and how we can form different types of extrinsic semiconductors, namely the N-type semiconductor and P-type semiconductor. Okay. So today what we're going to do is we're going to start with the next topic, and the name of the next topic is the electrical conductivity of extrinsic semiconductors. Now, before we start with this topic, let me just tell you this is a very important topic because numerical questions can be formed from this topic. ठीक है, and in the previous years numericals have been asked from this topic. ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा. ठीक है, now we are not going to go into great details regarding its derivations. हमें derivations में नहीं जाना है because derivation is not important for us here. हमें यहाँ पे क्या करना है, बिफोर in order for us to calculate the electrical conductivity in extrinsic semiconductor, we need to have the basic understanding of current electricity. अगर if you have a complete grip over, if you have a complete grasp of that concepts of electrical conductivity, this is a very easy concept to understand. Okay, now before we start with this electrical conductivity, let's just have a quick recap. Now we know that how we define, we already know that from from current electricity and electrostatics से हम एक चीज का पता है कि we define the electric field is defined as V over L. ठीक है, this is how the magnitude of electric field is given. E is equal to V over L. This is something which we already know from our basic understanding. ठीक है, now in an extrinsic semiconductor, ठीक है, whether it's an extrinsic semiconductor or whether it is an intrinsic semiconductor, हमें एक चीज का पता है from our previous lecture. We know that from our previous lecture that the total current I will be equal to the sum of electronic current and current due to holes. ये चीज हमें पता है. This is something which we already know. ठीक है, and now moving from from our basic understanding, now from our previous knowledge of current electricity, now from the previous knowledge of current electricity, ठीक है, फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमें ये पता है द करंट कैन बी रिटन एज एन ए वी डी. ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो वेयर ईच सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. ठीक है, ईच सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग. ये बात हमें पता है. दिस इज समथिंग व्हिच वी नो फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट दिस डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन, बट आई एम सॉल्विंग दिस डेरिवेशन टू गिव यू ब्रीफ आइडिया कि करंट किस तरह से काम करता है. ठीक है, सो दैट आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डेरिवेशन को आप लिखें नहीं, आप देखें नहीं, बट एक बार समझ लीजिए डेरिवेशन किस तरह से होती है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज द क्वेश्चंस इन अ मच बेटर वे. जब भी इसका न्यूमेरिकल आएगा यू विल बी एबल टू एनालाइज द क्वेश्चन इन अ मच बेटर वे इफ यू नो दिस डेरिवेशन. ठीक है, ये डेरिवेशन किस तरह से काम करते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन दिस डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी. I is equal to NAVD, where each symbol have their usual meanings. ठीक है, so we will be doing here is we will be substituting this value here. ठीक है, what does this mean? This means that the total current I will be equal to number of electrons into area of the conductor. ठीक है, and charge on the conductor, charge on the electron and drift velocity of electrons plus number of holes into area of conductor into charge on holes and drift velocity of holes. ठीक है, this is the formula जो आपके पास आ रहा है. ठीक है, तो what we can do, we can actually we can simply क्या कर सकते हैं हम इसमें, we can simply make some certain changes. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, we can take common, we can take EA as common and the formula will become NE into VE plus NH of VH. ठीक है, this is clear to you. Now again what we will do is we will bring A to the other side. It will become I over A into E of NE VE plus NH V of H. ठीक है, and from current electricity we also know that this quantity I over A is nothing but current density. I over A is current density, and current density is denoted by a symbol J, and J as we already know कैसी quantity, is it a scalar quantity or vector quantity? Please make sure that you write this in comment section. बताइएगा कि current density जो है वो आपकी scalar quantity है या vector quantity. ठीक है, so this will give you, this implies that J will be equal to E NE VE plus NH VH. ठीक है, now this is one formula which you should remember for your final examination.
ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है, इसके अलावा वी कैन मॉडिफाई दिस रिलेशनशिप इन मच बेटर वे, हम इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, नाउ एज वी ऑलरेडी नो, हमें एक बात का और पता है, वी ऑलरेडी नो दैट रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, ये बात भी हमें पता है। ठीक है, फर्दर हमें एक बात और पता है। ठीक है, सो लेट अस सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 and here we have our equation number 2. ठीक है, so what we're going to do is we're going to divide these equations. ठीक है, so dividing 1 and 2 implies, by dividing I should write, we get E over rho is equal to V over L over RA over L, which is equivalent to V over RA, which is equal to I over A. ठीक है, this means that, this implies that E over rho is equal to I over A. Please remember this relationship. This relationship is very important in both for current electricity and semiconductors. दोनों के लिए relation जो है काफी ज़्यादा important है. This is your second relation. Again, I should write here that this thing is very important. ठीक है, and now I over A becomes J. I over A becomes J. E over rho becomes is equal to J के बराबर हो जाएगा. So what we're gonna do is we're gonna make this substitution. ठीक है, so this will give us, ठीक है, this will give us, this implies that E over rho will be equal to E into NeVe plus NhVH. ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, he will give you each and every quantity and he will simply ask you what will be the resistivity of a wire if number of electrons are this much, drift velocity is this much, the number of holes are this much and drift velocity is this much. ठीक है, so you just simply have to substitute the values and you have to calculate the values of rho, आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, and now अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है। नाउ फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी वी नो वन मोर रिलेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमें एक चीज और पता है दैट म्यू ई इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर ई, दिस इज आल्सो अ रिलेशन व्हिच वी नो फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मेक दिस सब्स्टिट्यूशन हियर एंड हमें एक चीज और पता है दैट 1 बाय रो इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा इज योर कंडक्टिविटी। ठीक है, सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मेक दिस सब्स्टिट्यूशंस हियर, we will make these substitutions here. So at the moment we make these substitutions here, we get the value of sigma as 1 by rho, which is equal to E into Ne mu E plus Nh into mu H. ठीक है, and this is your required relationship, and this is our required relationship. ठीक है, so please remember this relationship. As I have already mentioned, the numericals have been asked from this टॉपिक और न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं एंड पूछे भी जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होगी? नाउ रिमेंबर दिस थिंग, फॉर इंट्रिंसिक semiconductor, for intrinsic semiconductor, let me write it properly. ठीक है, now remember this thing, for intrinsic semiconductor, ठीक है, अब हमें पता है intrinsic semiconductor, in intrinsic semiconductor we studied that Ne is equal to Nh and this is equal to Ni। ठीक है, एंड लेट अस सपोज वी सब्स्टिट्यूट Ni इज इक्वल टू N, हम उसको ये मान लेते हैं। ठीक है, तब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयरफॉर द कंडक्टिविटी सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 by rho equals to E N mu E plus mu H। ठीक है, so this is the relationship for intrinsic semiconductor, you should always remember these relationships। ठीक है, again very important relationships, as I have already mentioned, numerical problems have been asked from this topic and there is a chance numerical problems will be asked from this topic even in this year's examination। ठीक है, ये चीज आपके पास क्लियर हो गई?
ठीक है। नाउ लुकिंग एट दिस रिलेशनशिप, जब हम इस रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से देखते हैं, what will happen if the temperature goes on increasing? ठीक है, ठीक है। Now what will happen? Let's just try to understand this thing. Now when temperature is increased, when temperature is increased, what will happen? Let me again write this properly. When temperature is increased, ठीक है, when temperature is increased, तब क्या होता है? The moment the temperature is increased for a semiconductor, temperature is increased, ठीक है, for a semiconductor, तब क्या होगा? Now from this relationship, from the relation above, we see that the conductivity depends upon and number density of electrons and number density of holes. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं from the relations above, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि that the conductivity जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? Sorry, the conductivity is depending upon Ne and NH. कंडक्टिविटी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स पे वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इफ टेंपरेचर इज इंक्रीज, यहाँ पे भी वो इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो अब होगा क्या जब मैं टेंपरेचर को इंक्रीज करूंगा? सी, व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जब मैं टेंपरेचर को इंक्रीज करता हूं, देन द इलेक्ट्रॉन्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड दे मूव टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ द कंडक्शन बैंड हैव इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम कंडक्टिव। नाउ एज in case of semiconductor, if the heat is supplied, if the temperature is increased, the electrons from valence band they will gain some energy and they will move from valence band into conduction band. As a result, ठीक है, as a result on increasing the temperature, the number of electrons in a conduction band they increase. अब number of electrons, if the number of electrons in conduction bands are increased, the conductivity will increase. अगर आप conductivity increase कर गई, this means that resistivity will decrease. Hence we can say that on increasing the temperature, the conductivity of a semiconductor will increase. ठीक है, in case of semiconductor तो हमने क्या पढ़ा? In case of semiconductor, if temperature is increased, conductivity increases, ठीक है, conductivity increases. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? because this happens because with rise in temperature, the number of electrons in conduction band increases, ठीक है ना। since number of electrons in conduction band increases, this implies that conductivity will increase. Now if conductivity increases, this implies that resistivity will decreases. resistivity क्या करेगी आपकी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर एंड दिस क्वेश्चन वाज वन ऑफ योर पीवाईक्यूज, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। द सेम क्वेश्चन, दिस इज द सेम क्वेश्चन, दिस सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द असर्शन एंड रीजन फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो एक बार मैं आपकी नॉलेज के लिए इसको फॉर द नॉलेज सेक लेट मी जस्ट रिपीट दिस थिंग वंस अगेन। सो व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट यू इंक्रीज द टेंपरेचर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number of electrons that gain the energy so that they can move from valence band to conduction band, they increase, ठीक है। again I'm repeating myself once again, as the temperature is increased, the number of electrons, the electrons in the valence band, they gain sufficient energy so that they can jump this energy gap and they can move to the conduction band. So number of electrons on conduction band will increase, and the moment the number of electrons in the conduction band goes on increasing, the conductivity of the system increases, and if the conductivity increases, the resistivity decreases. This is how the semiconductor works, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो conductivity for a semiconductor will increase, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? Now moving on to the next topic. Now what will happen if for the conductivity? Now remember here, this is very important. This is very important, ठीक है। जरा देखते हैं इसको हम क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर कंडक्टर्स क्या होता है? फॉर कंडक्टर्स इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है।
this implies resistivity increases, and this result is exactly opposite to the result we studied in semiconductors. Semiconductors में क्या होता है? As the temperature increases, conductivity increases. But for conductors, the result is opposite. Conductors के केस में क्या होता है? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? मेरी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी मेरी डिक्रीज करेगी, तो इस वजह से क्या होगा? कंडक्टिविटी मेरी डिक्रीज करे तो मेरी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है. एंड व्हाई दिस हैपेंस? दिस ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द इफ वी इंक्रीज इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड दे स्टार्ट टू मूव at higher speeds. At higher speeds, as they move at higher speeds, this means that the number of collisions क्या करेंगे? The number of collisions will increase. Number of collision क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? Increase कर जाएंगे, ठीक है. Now since number of collision, if the number of collision increases, your resistance क्या करेगी? Resistance increase करेगी. And if resistance goes on increasing, तो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, एंड अगर आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, दैट मींस योर रेजिस्टिविटी विल योर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, योर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. इन केस ऑफ कंडक्टर्स में क्या होता है? तो इन केस ऑफ कंडक्टर व्हाट हैपेंस इज, एज द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम दे इंक्रीज देयर एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है. फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड द एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. अब एनर्जी इंक्रीज करेगी तो एज अ रिजल्ट दे विल मूव एट अ फास्टर स्पीड, द नंबर ऑफ कोलिशंस विल इंक्रीज. इफ द नंबर ऑफ कोलिशंस विल इंक्रीज, योर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी, एंड द मोमेंट योर रेजिस्टिविटी increases, your conductivity will decrease, ठीक है. So as a result, the effect of temperature on a conductor and on a semiconductor is exactly the opposite. In case of semiconductor, the conductivity increases, but in case of a conductor, the conductivity that decreases. ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपके लिए? ठीक है. Now let's just move on to the next topic, and this is one of the most important topic which we're going to start today is we're going to start today is the name of that topic is p-n junction. The name of that topic is p-n junction. Now what we're going to do is we're going to start with the next topic, and the name of the next topic is p-n junction. ठीक है. Now we're going to start with the topic of p-n junction या p-n junction diode भी हम इसे बोलते हैं. तो let me write here as diode. Now we're going to start the topic of p-n junction diode. ठीक है. Now before we start with the understanding of p-n junction diode कि p-n junction diode किस तरह से काम करता है, and what are the different ways in which we can use a p-n junction diode, and how the forward characteristic is different from the reverse characteristic of a p-n junction diode. There is a need to understand what is the meaning of p-n junction diode. How we can define a p-n junction diode. तो आपको समझना पड़ेगा the p-n junction diode is nothing but a, ठीक है, it is nothing but a semiconductor, ठीक है. It is particularly an arrangement. इसको आप क्या होता है? p-n junction diode is nothing but an arrangement. और वो arrangement किस तरह से बनता है? This arrangement is formed when a p-type semiconductor ठीक है, this is brought in close contact with n-type semiconductor, ठीक है, n-type semiconductor, ठीक है, and this gives us a p-n junction diode. ठीक है. Again I am repeating myself. Whenever I bring a p-type semiconductor in close contact of n-type semiconductor, what do I get? I get a p-n junction diode. ठीक है. This is something which you should remember. ठीक है. तो जरा इसको समझते हैं कि हाउ डज अ p-n junction diode फंक्शन एंड व्हाट इज द हाउ डज अ p-n junction diode ऑपरेट्स. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नाउ p-n junction diode को समझने के लिए फॉर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, स्टेप 1 क्या है? लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डज द p-n junction diode फंक्शंस. ठीक है. सपोज दिस इज आवर p-n junction diode. लेट अस से दिस इज आवर p-n junction diode. ठीक है. हियर वी हैव P, here is a p-type semiconductor, and here we have an n-type semiconductor. ठीक है. Let me write this thing is like properly. This is your n-type semiconductor. Let me use different colors.
This is your p type semiconductor and here we have a n type semiconductor. ठीक है, so this is how we have formed a p-n junction diode. ठीक है, अब जरा सा समझिएगा बहुत ध्यान से. This is now what we're gonna start today. Down the topic which we're gonna start right now is very very important. If you have, अगर आपको अभी समझ आ गया, if you are able to understand this topic right now, you won't be facing any problem. अगर नहीं समझ आया then it will take some time. ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा how a p-n junction diode functions and how a p-n junction diode is biased and how p-n junction, what is the meaning of this depletion layer and how this depletion layer varies with voltage. ठीक है, किस तरह से वो वेरी करते हैं वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे. सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द p-n junction diode you have to understand about the two processes. ठीक है, the two processes that are taking place inside a semiconductor, two processes that take place during formation of p-n junction diode. p-n junction are the two processes that take place during the formation of p-n junction. वो कौन से होते हैं? एक होता है diffusion, the one process is diffusion and the other is drift. ठीक है, always remember this thing. The two processes that take place during the formation of a p-n junction are diffusion and drift. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. नाउ फ्रॉम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम अभी तक हमने गेन की है, फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हिच वी हैव स्टडीड, फ्रॉम ऑल द नॉलेज दैट वी हैव राइट नाउ, हम डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन डिफ्यूजन? ठीक है, फ्रॉम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम डिफ्यूजन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? दैट वी डिफाइन डिफ्यूजन एज अ प्रोसेस वेयर अ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर concentration to a region of lower concentration. This is how we define diffusion को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो बहुत ध्यान से सुनिए किस तरह से चीजें होती हैं and how to and why we call a process as diffusion. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. Now in a p-n junction diode, the p side have the p-n junction diode, we know that the n type semiconductor have the majority carriers as electrons. The n type this n type will have majority carriers. क्या होंगे यहाँ पे? Majority carriers will be electrons. ठीक है, and holes क्या होंगे? Holes will be your minority carriers. क्या होंगे आपके? Holes होंगे. ठीक है, electrons and holes. Whereas in case of p-type semiconductor, your majority carriers will be क्या होंगे? Holes, while minority carriers क्या होंगे आपके? Electrons. ठीक है, ये बात क्लियर होगी? Again, I'm repeating myself. In case of a p-type semiconductor, the majority carriers are holes and the minority carriers are electrons. Whereas in n-type of semiconductor, the majority carriers are electrons and the minority carriers are holes. Clear होगी बात? So अब बहुत ध्यान से सुनिएगा. The moment we form a p-n junction करने के लिए हमने क्या किया? p-type semiconductor को close contact में लेके आए with an n-type semiconductor. As a result, हमने क्या form किया? हमने एक p-n junction को form किया. ठीक है, p-n junction is formed. Clear होगी इतनी सी बात? ठीक है, now what will happen is, since p-type semiconductor have majority carriers as holes while the n-type semiconductor will have the minority carriers as electrons. ये चीजें हमें पता है. ठीक है, as a result of which, ठीक है, since the holes are more on this side, the holes, let us denote holes with a symbol plus. Let us denote the holes with a symbol of plus. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? We are denoting the holes with a symbol of positive. ठीक है, let us denote the holes with the symbol of, let's just denote the holes with a symbol of this is your hole and this is your electron. ठीक है, now in a p-n junction diode what is happening is, in p-n junction diode आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है. in p-n junction diode the number of holes are more. Let's just say these are our holes. Okay, and these are electrons. Holes, electron, hole, again hole, and this is how this is functioning. Whereas
as in case of n type number of holes are more because holes are your majority carriers. ठीक है, and holes are your minority carriers in your what do we call that thing, in your n type semiconductor. ठीक है, तो ये चीजें आपके पास है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, आई मेड अ minute mistake in making this diagram. ठीक है, I have to give some space here in order to explain the phenomenon of drift velocity. ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा not the drift velocity but rather the phenomenon of drift. ठीक है, this is how this thing will work. ठीक है, so here we have a hole, here we have electrons. ठीक है, again electron, hole, electron, 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 hole and hole. ठीक है, आप जरा समझने की कोशिश करते हैं how does this thing works. ठीक है, now when PN junction is diode is formed, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, when PN junction diode is formed, what happens is due to the difference in concentration of charge carriers, due to the difference in the concentration of charge carriers in two regions of PN junction, the electrons from n region, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, again I'm repeating myself. ठीक है, when a PN junction diode is formed due to the difference in concentration of electrons, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिक लिखता हूँ, लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग, व्हेन PN junction is formed, then due to difference is formed, then due to the difference of concentration of charge carriers in two regions. two regions कौन से हैं आपके? the P region and the N region. the two regions, तो क्या होता है, the two regions of the PN junction, the electrons, याद रखिएगा, this is something very important, so let me just use a different color. तो आपका क्या होता है, तो उस फॉर्म चीज में क्या होता है, the electrons they diffuse, the electrons diffuse through junction into P region, ठीक है, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम n region to P region, whereas these are your electrons, and whereas your holes are moving from a region from P region to N region, because the number of holes in P region are more, so as a result the holes will diffuse from P region into N region. ठीक है, and in case of N type the number of electrons are more, so as a result the electrons will diffuse from junction into P region. ठीक है, and holes diffuse through junction into N region. ठीक है, चीज क्लियर हो गई? ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इस डिफ्यूजन की वजह से, ड्यू टू दिस थिंग, अब आपके पास क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू दिस थिंग अ डिफ्यूजन करंट इज जनरेटेड, ड्यू टू दिस अ डिफ्यूजन करंट इज जनरेटेड इन द सिस्टम. ठीक है, डिफ्यूजन करंट इज जनरेटेड. ठीक है, इतनी सी बात समझ आएगी. लेट मी रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन. ठीक है, हमने क्या किया, पीएन जंक्शन को फॉर्म किया, एंड नाउ सिंस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पीएन in the P side, the P semiconductors are holes, whereas the majority carriers in the N type semiconductors are electrons. So what happens is, due to the difference in the concentration of the charge carriers on the both sides, what happens is the holes start to move from P region to N region, whereas the electron starts to move from N region to P region through, and this process takes place through junction. इस junction के थ्रू क्या करता है, वो पास करना शुरू करता है. Why this is happening? Due to the phenomenon of diffusion. Diffusion का मतलब क्या है, we move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है, इस वजह से आपके सिस्टम में जो करंट जनरेट होता है, that current is known as your diffusion current. ठीक है,
दिस इज नोन एज योर डिफ्यूजन करंट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को और ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्म अ दिस बैरियर, वी विल फॉर्म अ बैरियर, वी विल फॉर्म अ विड्थ, हम इस बैरियर को फॉर्म करेंगे। आप देखेंगे बैरियर किस तरह से बनता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। अब आपका क्या है, द मोमेंट द इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम एन रीजन टू p region मूव कर रहे हैं। दिस इज समथिंग which we know because number of diffusion process of diffusion is taking place, ठीक है। so when the number of when the electrons are diffusing from n region to p region in through a p-n junction, what will happen, it leaves the ionized donor atom in n region। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, होगा क्या, जब आपने क्या किया, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। द मोमेंट योर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। द मोमेंट योर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, क्या हो रहा है, तो आपका सिस्टम में क्या हो रहा है, इट इज लीविंग बिहाइंड आयनाइज्ड डोनर एटम इन एन रीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। वो क्या लीव कर रहे हैं पीछे, पॉजिटिव चार्ज को वो छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इट विल लीव एन आयनाइज्ड एटम, उसके पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन होल्स आर मूविंग फ्रॉम दिस पी रीजन टू n region, ठीक है, when holes are diffusing from p region to n region, it leaves behind an acceptor atom in p region having negative charge, ठीक है। इनके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम एन टू पी रीजन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस रिमूवल की वजह से क्या है, ऑन द पी साइड सॉरी ऑन द एन साइड यू आर लीविंग एन आयनाइज्ड एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है एन रीजन से पी रीजन पे जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपने एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कर रहा है, एक आयनाइज्ड एटम को छोड़ रहा है जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली जब आपके होल्स जो हैं वो पी रीजन से एन रीजन पे जा रहे हैं, द मोमेंट योर होल्स आर मूविंग फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, इट इज लीविंग बिहाइंड अ चार्ज पार्टिकल, इट इज लीविंग बिहाइंड एन एक्सेप्टर एटम हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही आपके होल्स जो हैं वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ को मूव कर रहे हैं, वो पीछे एक आयनाइज्ड एटम को छोड़ के जा रहे हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, नियर द जंक्शन, ठीक है। अब आपको यहां पर समझना पड़ता है होता क्या है। now we know that electric field जो सेटअप होती है from positive to negative, this is how the electric field is generated, ठीक है। तो अब होता क्या है, due to the positive charge region on the n side, due to the positive charge region on the n side and the negative charge region on the p side, आपके पास क्या होता है, electric field is set up, an electric field is set up across the junction from positive charge towards the negative charge as if, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, इधर। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिप्लीशन लेयर, हम डिप्लीशन लेयर की बात कर रहे हैं। इन द डिप्लीशन लेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब वो इस तरह से सेटअप होती है, इस तरह से फंक्शन करती है कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी है, एक बैटरी लगी हुई, जो हमें है नहीं बट लगी, हमें लगता है कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है, हम वी बी मान के चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस थिंग फंक्शंस, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसको फिर से रिपीट कर देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगेन बहुत जल्दी करेंगे ताकि इसमें ज्यादा और टाइम वेस्ट ना करें हम, ठीक है। इसको समझने के लिए हुआ क्या, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, हमने पीएन जंक्शन को फॉर्म किया, वी फॉर्मड अ पीएन जंक्शन। हमने पीएन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए व्हाट वी डिड, वी ब्रॉट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, वी ब्रॉट एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, वी फ्यूज देम, व्हेन वी फ्यूज देम वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसको हम डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द पी टाइप, इन द पी टाइप वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन सॉरी द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर्स है, ठीक है। सो एज अ प्रोसेस अब डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, when the particles move from a region of higher concentration to the region of lower concentration, so in p type में क्या है, in the p type semiconductor क्या है, since holes are majority carriers their number is more, as a result the holes will start to move from p region to and towards n region, क्यों, because n region में number of holes कम है। Similarly since the n type semiconductor the number of electrons are more, now since number of electrons are more they will start to move from a region from n type semiconductor towards the p type semiconductor, क्यों, because in the p type semiconductor number of electrons are less,
ठीक है। एज अ रिजल्ट जो करंट आपके सिस्टम में सेट होता है, दैट्स करंट इज नोन एज योर डिफ्यूजन करंट। उस करंट को आप क्या बोलते हो? डिफ्यूजन करंट बोलते हो, ठीक है। द मोमेंट अब आपका डिफ्यूजन करंट सेटअप हो गया, अब जब डिफ्यूजन करंट सेटअप हो जाता है, अब आपको समझिए, अब इलेक्ट्रॉन और होल्स की मूवमेंट हो रही है। द मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन टाइप रीजन टू पी टाइप रीजन, देखिए समझिए, द मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम N to P type semiconductor, what happens? It leaves behind वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है? It leaves behind an ionized atom having positive charge। ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से when a hole moves from P type to N type, what happens? It leaves behind an acceptor atom having negative charge, ठीक है। और ये चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कहाँ पे नजर आ रही है? We can clearly see this thing here। यहाँ पे एक्सेप्टर एटम्स है और यहाँ पे आपके पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम में सेटअप हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सेट होती है दैट इट फील्स टू अस दैट अ फिक्टिशियस बैटरी इज बीइंग ऑपरेटेड, ठीक है। एंड दिस रीजन, ये जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, दिस रीजन इज नोन एज योर, क्या है? ये जो रीजन है ये सेट करता है, एक बैरियर सेट करता है। दिस रीजन सेट्स अ बैरियर, ठीक है। अब आप समझ लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड एज अ रिजल्ट it appears that a fictitious battery is operating, ठीक है। fictitious battery is operating, ठीक है, across the junction, और इन दिस फिक्टिशियस बैटरी जो है आपके पास, इस फिक्टिशियस बैटरी को आप क्या बोलते हो? दिस फिक्टिशियस बैटरी इज VB, जो हमने सिस्टम में ड्रॉ की हुई है। दिस इज योर फिक्टिशियस बैटरी VB, ठीक है। अब जरा समझते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। क्रॉस द जंक्शन हमने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है। दिस फिक्टिशियस बैटरी, अभी जो फिक्टिशियस बैटरी होगी किस तरह से काम करेगी? सिंस इट्स अ फिक्टिशियस बैटरी, इट विल अपोज, क्यों, कैसे करेगी? बिकॉज हियर इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड होल्स आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर। अब होल्स के पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, सो एज अ रिजल्ट द पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। एज अ रिजल्ट ये जो बैटरी बन रही है, फिक्टिशियस बैटरी जो जंक्शन के अक्रॉस बन रही है, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग, इसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, fictitious battery is being operated, ठीक है। एज अ रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड which is set up across the junction, this provides a barrier। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। which opposes further movement of holes and electrons from their regions of higher concentrations। मतलब द मोमेंट दिस बैरियर इज सेटअप, तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट को, अपोज करेगा, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज अ बैरियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, द डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस which is set up here, the potential difference जो हम यहाँ पे सेटअप करते हैं, that is known as the height of the barrier, that is known as the height of the barrier। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो आपसे सीधा ये पूछ जाएगा, the height of the barrier is measured in the units of
एनर्जी, डिस्टेंस, पोटेंशियल एंड एवरीथिंग। तो आपको समझना है हाइट, जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हाइट ऑफ द बैरियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पेपर में ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइट ऑफ द बैरियर वी टॉक अबाउट दी, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द जंक्शन, मोर विल बी द बैरियर एंड मोर विल बी द ऑब्जेक्शन। ठीक है, वो उसको अपोजिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात। ठीक है ना, अब ये चीज आपके पास होगी। ठीक है, अब ठीक है ना, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डेवलप्ड अक्रॉस जंक्शन, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेटअप अक्रॉस जंक्शन, यहाँ पे क्या है, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया हुआ है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो आपने सेटअप की हुई है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने यहाँ पे सेटअप की हुई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन, एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड, एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द एन साइड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ को मूव करना शुरू करेंगे, एंड होल्स यहाँ से यहाँ को मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट अ न्यू काइंड ऑफ करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर डिफ्यूजन करंट। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अब यहाँ पे समझिएगा। अब इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द बैरियर बोलते हैं। अब देखिए सुनिए, अब इस हाइट ऑफ द बैरियर, नाउ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड which is set up across the barrier, the electrons from p region, अब ध्यान से सुनिएगा, the electrons from p region will start to move from p region into n region, ठीक है, giving rise to ड्रिफ्ट करंट। उसकी वजह से क्या जनरेट करेगा, आपका ड्रिफ्ट करंट जनरेट करेगा। एंड दिस ड्रिफ्ट करंट जो होता है आपको समझना है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट is opposite to diffusion current। ठीक है, and remember one more thing, that the diffusion current is due to the minority carriers। this drift current, not diffusion current but drift current is due to minority carriers। क्यों? because आपको ये बात समझनी है कि आपकी जो मूवमेंट है ड्रिफ्ट करंट की वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ दिस डिफ्यूजन करंट। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पी से आप एन की तरफ को मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है। ठीक है, वन मोर थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इन द बिगिनिंग द डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन द बिगिनिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। डिफ्यूजन करंट जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। ठीक है, एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, योर ड्रिफ्ट करंट विल इंक्रीज। ड्रिफ्ट करंट वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। दिस इंप्लाइज दैट योर डिफ्यूजन करंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, और ये कब होता है, ये और ये तब कब तक चलेगा, जब तक आपका डिफ्यूजन करंट बिकम्स इक्वल टू डिफ्यूजन करंट के पास ना हो जाए, ड्रिफ्ट करंट के बराबर ना हो जाए, जब आपका इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू। इसका मतलब ये हुआ, अब हमने यहाँ पे जो पढ़ा था डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, यहाँ पे हम ये चीज लिख लेते हैं कि दैट योर डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स while your drift current is due to minority carriers। ठीक है, आई एम सो सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग, बट
ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज मैं लिखना प्रॉपरली मैं लिख नहीं पाता हूँ अभी. सो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस थिंग. आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर माई हैंड राइटिंग. लिखना मेरे लिए भी मुश्किल है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छी राइटिंग में लिख सकूँ. दैट इज द रीजन वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एटलीस्ट यू सॉरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग, यू कैन एटलीस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, बिकॉज आई एम राइटिंग द सेम थिंग. सो बिकॉज ऑफ माई डिजीज आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली राइट नाउ. So it will take some time. It will take at least 2 to 3 months for me to heal. So this is the reason. So I'm so sorry about my handwriting. ठीक है? I hope you can forgive me for my handwriting. So that is the thing. Okay. So ये चीज आपका clear होगी. This is how the diffusion current and diffusion layers becomes. ठीक है? And now one more thing. ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा. Now यहाँ पे एक चीज मैं आपके लिए और लिख देता हूँ. That is the width of the diffusion layer. Width of depletion layer and magnitude of barrier potential ठीक है. This depends on किसके ऊपर डिपेंड करता है? This depends on the nature of semiconductor. Depends on nature of semiconductor कि semiconductor कैसा है, and it also depends upon the doping. डोपिंग के ऊपर भी वो डिपेंड करता है. तो प्लीज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स. ओके, तो होता क्या है? ठीक है, द डिफ्यूजन एंड द इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अगर होगा क्या, इफ द डोपिंग ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मिंग पीएन जंक्शन इज स्मॉल, अगर आपकी डोपिंग क्या है, कम है, इफ योर डोपिंग इज स्मॉल, द डिफ्यूजन करंट एंड द होल्स अक्रॉस द जंक्शन विल मूव क्वाइट लार्ज डिस्टेंस बिफोर सफरिंग द कोलिशंस. अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. इफ योर क्या चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर आपकी डोपिंग जो है, इफ डोपिंग इज लेस, इफ योर डोपिंग इज लेस, अगर आपकी डोपिंग लेस है तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज योर डिफ्यूजन करंट विल बी मोर. ठीक है, डिफ्यूजन करंट विल बी मोर. इसको उससे भी बढ़िया समझने के लिए को समझिए. इफ योर डोपिंग इज लेस, इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि व्हेन द डिफ्यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दिस इंप्लाइज दैट द डिफ्यूजिंग electrons and holes will move larger distances. larger distance को मूव करेंगे. ठीक है, बिफोर सफरिंग अ कोलिशन. ठीक है, बिफोर सफरिंग अ कोलिशन. ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट आपकी जो पीएन जंक्शन होगा, ठीक है, द विड्थ ऑफ द पीएन जंक्शन विल बी लार्ज. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन वो क्या होगी? विल बी लार्ज. अगर आपकी विड्थ ज्यादा हो गई, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेट अप विल बी स्मॉल बिकॉज E is equal to V by L. अब L ज्यादा है, दैट मीन्स E will become. ठीक है, अब सभी बात समझ आ रही है आपके लिए? ठीक है, एंड ऑपोजिट इज द केस व्हेन डोपिंग इज मोर. ठीक है, ये चीज समझना. मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज अ पी एन जंक्शन डायोड एंड लेट जस्ट से अ डोपिंग इज लेस, दिस इज योर पी एंड दिस इज एन. इफ डोपिंग इज लेस, दिस मींस दैट इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर वी हैव होल्स, if doping is less, this means the number of holes are less. If number of holes are less, then these electrons will move a larger distance before coming in contact with the hole to form a bond. ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके होल्स यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हैं, they will move a larger distance. इसका मतलब क्या होगा? आपकी जो विड्थ होगी वो ज्यादा होगी. If L is small, electric field will be less. So this is something which we are studying here. ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर हो गई यहाँ पे? ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होंगी. ठीक है, सो विद दिस आज का लेक्चर हम आज यही खत्म करते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी लास्ट टॉपिक. इसको अगर आप आज ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको,
थोड़ा करके सेमीकंडक्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर नहीं करेंगे आपको बहुत समझने में दिक्कत होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज दे क्रैम दिस चैप्टर, वो रट्टा मार के जाते हैं, ठीक है। एंड इन द एग्जामिनेशन व्हेन द एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन, अगर वो ऐसे ही पूछ लेगा कि व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस अंटिल अनलेस यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ द दिस विड्थ वर्क्स, हाउ दिस थिंग वर्क्स, ठीक है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। दिस इज द रीजन व्हाई कि मैंने आपको थोड़ा कम करवाता हूँ। 50-45 मिनट्स के चैप्टर्स चलते हैं, तो लेक्चर्स लेता हूँ मैं आपके, ठीक है। करवाने को अब ये लेक्चर ऐसा है कि मैं एक लेक्चर में भी खत्म करा दूँ, आई कैन वाइंड अप दिस चैप्टर इन 1 डे, 3-4 घंटे का वीडियो बनेगा, बट उसमें मजा नहीं है ना, बिकॉज आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा एंड यू वोंट बी एबल टू, आपके दिमाग में वो चीजें घुसेंगी नहीं, ठीक है। टाइम है आपके पास बिकॉज एंटायर सिलेबस इज डन, इसका सिर्फ ऑप्टिक्स बचता है, ऑप्टिक्स में भी आपके 3-4 दिन लगेंगे, ठीक है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप जो पढ़े ऐसा पढ़े कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। दिस इज द रीजन भाई, जितना करवा रहा हूँ उतना करते चलिए, परसों तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट इज समथिंग विच आई एम श्योर ऑफ, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज मेक श्योर, चलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगता है आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। दिस विल टेक सम टाइम बट आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से खींचेगा एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड कुछ भी डाउट्स हो प्लीज राइट देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड विद दैट I wish you all the best. Thank you so much. Bye bye. Take care and good night.